Good morning, students. Students, as you know that we are discussing our second chapter of biology, control and coordination. And in the previous video, I started control and coordination in animals, and I told you about what are the different components of control and coordination, or what are the various systems of living organisms body or any animal's body which are helping in control and coordination. As we know that our nervous system as well as endocrine systems are responsible for control and coordination. So today I will discuss about nervous system. As I initiated in my earlier video that nervous system, what is nervous system and what is its function. And I told you that there are various sense organs we have which are helping us to detect stimuli from the environment with the help of the various receptors which are present in our various sense organs. So today I want to discuss in the same series that what are the various components of nervous system. If somebody is going to ask you that do you know which organ make our nervous system, so definitely you will answer that, sir, our nervous system is made up of brain, spinal cord, nerve cell or neuron. ठीक है. So one by one we will discuss about them. So initially I want to discuss that what are the various parts of the nervous system. So I will tell you that nervous system is basically made up of neuron, and it is divided into three parts: CNS, central nervous system; PNS, peripheral nervous system; and the third one is autonomous nervous system or autonomic nervous system, ANS it is written as. ठीक है. तो अगर बात करें तो बेसिकली जो फंक्शनल यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट सेल है, तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो है, सेल है जो आपका नर्वस सिस्टम बना रही है, वो तो न्यूरॉन है. एंड ये न्यूरॉन तीन तरह के नर्वस सिस्टम बनाती है. द फर्स्ट वन इज सीएनएस. सीएनएस के अंदर आता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. और पीएनएस के अंदर आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसके अंदर दो तरह के नर्व्स आती हैं आपकी. ये फर्स्ट बोलते हैं हम क्रेनियल नर्व्स, और दूसरी होती हैं आपकी, सॉरी, फर्स्ट होती हैं क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स आपके ब्रेन से निकलती हैं और स्पाइनल नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं. तीसरा जो है आपका एएनएस है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ठीक है. ये पैरेलल रन करता है आपका सीएनएस के, एंड ये दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. तो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट the structure of the neuron. Here in this figure you are observing different types of nervous system, so we will discuss it later on. So I am talking about the structure of neuron. So I think you are must aware that what is the structure of neuron, because it was in class 9th too. Neuron has basically three parts. ठीक है. Axon, dendrite and cell body. Now the axon conducts the message away from the cell body. Dendrite receives information from the next cell and conducts it towards the cell body. So if you are observing here, so the broader part or the bigger part, or we can say that quite spherical part similar to the spherical or polygonal part, we can say that it is called as cell body or cytone. ठीक है. And you are observing fine hair like structures are arising from here. These are called dendrites. ठीक है. Cell body you are observing here and dendrites you are observing here. Then you are observing a long cylindrical portion, ठीक है, brown color portion. This is called as axon. ठीक है. And axon is terminating into fine hair like structures, and these are called as nerve endings. ठीक है. So we can see here, or we can observe here, a typical neuron has three most important parts. Dendrites. तो डेंड्राइट का काम क्या है? ये जो सिग्नल्स हैं या इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज हैं या जो नर्व इम्पल्सेज हैं, इन्हें रिसीव करने का काम करता है. इन्हें रिसीव करता है और इन्हें कहाँ भेज देता है? सेल बॉडी के पास भेज देता है. ठीक है. एंड सेल बॉडी, इफ़ यू विल ऑब्जर्व द सेल बॉडी, ठीक है, इट कंटेन्स न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम अदर ऑर्गेनेलीज टू. ठीक है. एक्चुअल में जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स जो नर्व इम्पल्सेज हैं, ये केमिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में इनको कैच करती हैं. ठीक है. यानी केमिकल्स की फॉर्म में इन इम्पल्सेस को कैच करती हैं. जब ये इम्पल्सेस आपकी कहाँ पहुँचती हैं? आपकी सेल बॉडी में पहुँचती हैं. तो सेल बॉडी में आने के बाद ये केमिकल इम्पल्स आपकी इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल, यानी जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स का मतलब एक तरह का इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में ये एक्सॉन में पास ऑन होती हैं. और पास ऑन होने के बाद आप देख रहे हैं कि जो नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग के टिप पे आप देख रहे हैं नॉब जैसी होती है, आप देख रहे हैं. तो यहाँ पे दोबारा केमिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट होती हैं. तो केमिकल इम्पल्सेस को दूसरे न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स हैं वो कैच कर लेती हैं. तो इस तरह से आप देखेंगे एक्सॉन के बाद जहाँ पे नर्व एंडिंग है, वहाँ पर एक जंक्शन होता है. दिस इज़ द जंक्शन बिटवीन टू कंजेकेटिव न्यूरॉन. ठीक है. एंड दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज साइनेप्स. ठीक है. तो व्हाट इज, अगर समबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाट इज साइनेप्स, तो यू कैन से दैट साइनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू कंजेकेटिव न्यूरॉन. ठीक है. फ्रॉम वेयर नर्व इम्पल्स पासेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन.
ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. नाउ हेयर यू कैन सी दैट हाउ द न्यूरॉन्स आर अरेंज टुगेदर. न्यूरॉन्स आर अरेंज एंड टू एंड फॉर्मिंग अ चेन. तो न्यूरॉन्स क्या है, एक तरह से आप देखें आपके घर में वायरिंग होती है, एक वायर जोड़ा जाता है, जहाँ पे वायर ख़त्म होता है उसके साथ दूसरा वायर जोड़ते हैं, दूसरे के साथ तीसरा जोड़ते हैं, तीसरे से चौथा जोड़ते हैं. इस तरह से पहले वायर से दूसरे वायर पे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे वायर पे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. तो सिमिलरली दीज न्यूरॉन्स आर ऑल्सो जॉइन इन अ चेन पैटर्न. ठीक है, दिस हेल्प्स द कंटिन्यूस ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स. और नर्व इम्पल्सेस के कंटिन्यूस ट्रांसमिशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. ईच न्यूरॉन रिसीव्स एन इम्पल्स थ्रू its dendrite and transmit it to the next neuron in a sequence through axon. तो हर किसी न्यूरॉन में क्या होता है, न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं वो नर्व इम्पल्सेस को कैच करते हैं, साइटॉन में भेजते हैं, साइटॉन से होते हुए इम्पल्स एक्सॉन में जाती है, एक्सॉन से फिर नर्व एंडिंग में, नर्व एंडिंग से दूसरे डेंड्राइट पे. ठीक है, इस तरह से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे. तो न्यूरॉन्स आर नॉट कनेक्टेड. साइनेप्स और स्मॉल गैप्स अकर बिटवीन द वन न्यूरॉन एंड द डेंड्रॉन ऑफ द अदर न्यूरॉन. एंड तो जहाँ पर मैंने कहा था ना कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से टच नहीं होती, यहाँ पे इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है. इस गैप को बोलते हैं बेसिकली, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या इसको साइनेप्स के नाम से भी जानते हैं. एंड इन हायर क्लासेस यू विल स्टडी इन डिटेल अबाउट देम. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दिस फिगर यू आर ऑब्जर्विंग, ये नॉब जो है ये नर्व एंडिंग की नॉब है आपको. ठीक है, आपको ओनियन की तरह जो बल्ब दिख रहा है. और जो दूसरा जो नीचे सरफेस दिख रही है ये आपका दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं. तो कुछ केमिकल्स ये रिलीज़ करता है जिनको एसिटिल कोलिन भी बोलते हैं. तो इनकी हेल्प से जो ये केमिकल की फॉर्म में जो इम्पल्स है आगे बढ़ती है और दूसरे वाले न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं इन्हें कैच कर लेते हैं. ठीक है, तो आगे की बात बताऊँ मैं आपको. न्यूरॉन से टाइप के बारे में अगर फटाफट डिस्कस करना चाहूँ तो न्यूरॉन जो होते हैं बेसिकली दीज आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन. नाउ व्हाट आर दीज, आई एम गोइंग टू डिस्कस देम इन डिटेल. सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जैसे सेंस ऑर्गन ने किसी चीज़ को, किसी स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया. डिटेक्ट करने के बाद आपका सेंस ऑर्गन क्या करेगा, जो भी उसने सिग्नल रिसीव किया है उस सिग्नल को या तो ब्रेन तक भेजेगा या स्पाइनल कॉर्ड तक भेजेगा. तो सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन हैं जो इस सिग्नल को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर के जाते हैं. ठीक है, दीज आर द नर्व सेल्स विद इन नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस. तो यानी कि सेंस ऑर्गन में जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने जिस सिग्नल को रिसीव किया, उस सिग्नल को ये रिसीव करने के बाद उसको कहाँ तक लेके जाएंगे, आपके CNS तक लेकर के जाएंगे. ठीक है, वहीं जो आपका मोटर न्यूरॉन है, अब मोटर न्यूरॉन क्या करेगा कि अब आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने उस सिग्नल को एनालाइज किया और जो भी ऑर्डर उसने देना है, ठीक है, उस ऑर्डर को वापस इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर के आएगी. फॉर एग्जांपल मेरा हाथ गर्म प्लेट पे पड़ता है, तो मेरी स्किन में जो रिसेप्टर हैं, थिग्मो रिसेप्टर, उन्होंने टच का पता लगाया कि गर्म चीज़ पे हाथ पड़ गया है, तो उसे तुरंत उन्होंने इलेक्ट्रिक इम्पल्स पे कन्वर्ट किया. उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर के गया सेंसरी न्यूरॉन. स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत क्या किया, उसको एनालाइज किया. एनालाइज करने के बाद जो भी उसने ऑर्डर देना था वो इम्पल्सेस की फॉर्म में ऑर्डर दिया. एंड ये ऑर्डर वापस लेके कौन आया, मोटर न्यूरॉन लेकर के आया. कहाँ तक लाया, मेरा हाथ इफेक्टर ऑर्गन था क्योंकि हाथ जल रहा था मेरा, तो इफेक्टर ऑर्गन मेरे हैंड की मसल्स हो गई, तो हैंड तुरंत पीछे खिंच जाएगा क्योंकि वो ऑर्डर उसने किसने किया हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड ने किया हुआ है. तो मोटर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स विच आर फॉर्मिंग ए पाथवे, ठीक है, थ्रू विच द नर्व इम्पल्सेस पास फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन और इफेक्टर ग्लैंड. ठीक है, एक तीसरी तरह का भी होता है जिसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन. ठीक है, दीज कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ CNS टू अनदर. यानी अगर देखा जाए, अगर रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन क्या काम करते हैं, तो ये बेसिकली आपके स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के पास प्रेजेंट होते हैं, जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं. इज इट क्लियर? आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू, बाय बाय.